Here, when you draw the line in the xy plane, see here, this is angle made by the line. This angle is called theta, and that theta is called inclination, or we have found the inclination of line. Then you were given some questions. What is the inclination of line? What is the inclination of line? What is the inclination of line? Inclination of line. Here, what is the inclination of line? I have drawn the diagram. You have to tell me the inclination of the line. Okay. From your observation, you will tell me the inclination of the line. So this is angle 30 degrees. So tell me what is the inclination of this line. Draw the diagram first and write down the answer. What is the inclination of the line? It is not 30 degree. It is not 30 degree. It is somewhat different from 30 degree. What is the inclination of line? It will be somewhat different from the line. Inclination, your answer must be here. Here, this angle will be the inclination. This angle must be the inclination. See the inclination of the line. Inclination of the line is, yes. So what is your answer? Your answer, yes. Your answer will be 150 degree. Yes, 150 degree will be your answer. This angle is your inclination. So you keep in mind that angle will be 180 minus 30. That is 150 degree because the total angle is 180 degree. Okay, draw the diagram. Draw fast. Inclination of the line is 150 degrees. Inclination is always with positive direction of x-axis. Inclination of line is always with positive direction of x-axis. Inclination is always related with the positive direction of x-axis. Angle with positive direction of x-axis is called the inclination. 150 degrees is the inclination. Simultaneously draw the diagrams. Next problem, next diagram. Okay, I am going to draw different types of diagrams. Now see here, this is again the same triangle, but I will show you a different angle. Suppose this angle is 30 degree. Then again tell me that what is the inclination? What is the inclination? Tell me that. Answer. Theta equals to what? Theta equals to what? वही आंसर आएगा. Yes, the same answer because we require this angle. That is theta will no 30 नहीं 30 नहीं 30 नहीं ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा जाना है आपको ऐसा. So theta will be what? 180 minus 30. It will be 150 degree. Theta will be 150 degree. Yes, theta will be 150 degree. Okay, next. Okay, bye. Next. Suppose I have the same line. In this way, I have this line. And the angle is say 30 degree. So what will be the inclination? Guess and tell me that. What will be the inclination of the line? What will be the inclination of line? No, 30 degree is not the inclination. ये angle नहीं inclination. Positive direction of x-axis. Line कहाँ intersect करती है x-axis को इधर? Yes. तो इधर से इधर आएगा. So उसका पॉजिटिव डायरेक्शन लाइन के साथ मैच होगा तो एंगल कितना होगा? 60 degree. Yes, ये एंगल, this angle will be theta. Theta will be what? 60 degree because ये एंगल 90 degree है. 90 degree है. So different question, different question, different question.
ऑल आर डिफरेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। चलो अब क्वेश्चन बदल देते हैं। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। नेक्स्ट आपको तुरंत ड्रॉ करने हैं लाइंस। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, you have this type of line, this angle is say 60 degree, देखो the angle is 60 degree, this angle will be your inclination, ये आपका एंगल इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। आपको ये समझना है पहले, कल से हम तो यही बता रहे हैं कि आपको एंगल समझना है, कौन सा एंगल आता है उसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं। दिस इज वन, सो ऑटोमेटिकली देखो ये 60 है तो ये फिर 30 हो जाता, फिर ये एंगल क्या हो जाता 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। सेम क्वेश्चन बट आस्क इन डिफरेंट वे। 90 है ना, यू वर गिवन 60 डिग्री, फिर आपको इधर का नजदीक का 30 मिल गया तो ये हुआ आपका 150। पॉजिटिव लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होती है यहाँ जाने का, वहां से एक एरो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने का और एक एरो लाइन के ऊपर लेके जाने का, इधर नहीं नीचे नहीं। पॉजिटिव डायरेक्शन को टर्न करने कौन सा आएगा, इधर का थोड़ी आता है, ऐसा नहीं टर्न करने। फिर से देखिए, देखो चलो, see here these are the x and y axis, x axis and y axis। ओके, अब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो चार एंगल बन गए, एक दो दोनों इक्वल है, तीन चार। अब हमको क्या करना है, इस इंटरसेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर जाना है। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इसको क्या करना है, टर्न करना है, इसका एंगल बनाना है, एंगल टर्न करके एंगल बनाना है। कैसे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, ऐसा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ये थीटा बनेगा, बन गया थीटा, उसे कहते हैं थीटा, याद रखो। तो देयर आर सो मेनी एंगल्स, दिस विल बी योर थीटा। पहले जाना है एंटी क्लॉकवाइज, पहले डिसाइड करना है पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव की ओर जाने वाली, राइट साइड जाने वाली डायरेक्शन, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है और उस एंगल को हम कहते हैं थीटा, एंड दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, दिस इज द एंगल थीटा दैट यू हैव टू राइट। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करके थीटा लिखना है। अब मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आपको अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करने, यू हैव टू ड्रॉ सो मेनी डायग्राम। अगेन वी हैव द डायग्राम। अब किसी भी डायग्राम में आपको क्या करना है, पहले थीटा डिसाइड करना है, वेयर इज यूर थीटा। अब थीटा डिसाइड नहीं करते हो और फिर डायरेक्ट आंसर, पहले थीटा डिसाइड करो, बहुत सही। सी दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अब हम लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ की, वेयर डज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वेयर डज इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ये पॉइंट को आपको फाइंड करना है, ये आपका पॉइंट। दिस इज योर पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है आपका जहां लाइन एक्स को इंटरसेक्ट करती है। अब आपको क्या करना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर आपको जाना है। तो ये पॉइंट हुआ इंटरसेक्शन का। पॉजिटिव डायरेक्शन लेफ्ट है क्या राइट है, मुझे बोलिए आप लोग।
पॉजिटिव डायरेक्शन लेफ्ट होगी कि राइट होगी? हेलो, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स की लेफ्ट होती है राइट होती है? लेफ्ट होती है, राइट होती है? तो राइट होती है ना, तो राइट साइड जाना है। ये पॉइंट से पहले पॉइंट डिसाइड करना, तो राइट साइड गए, गए कि राइट साइड? अब तीसरा पॉइंट, उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और लाइन की ओर जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है? टर्निंग, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग लेफ्ट साइड है, राइट साइड है? आपके लेफ्ट साइड है, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग रहता है लेफ्ट, तो ऐसा टर्न होने का। आ गए लाइन पे, लाइन पे आ गए ना, वो एंगल रहता है थीटा। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ओके, दिस इज एंगल थीटा, ये आपका एंगल थीटा होगा। डायग्राम ड्रॉ करो और 3 पॉइंट लिख लो। पहले, ये लाइन एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? दूसरी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाने का, और तीसरा एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने का। एंटी क्लॉकवाइज आप लोग टर्न करोगे इसको। डायग्राम ड्रॉ करो, राइट डाउन दिस 3 पॉइंट्स, और हम कुछ ऐसे लाइंस। प्रॉब्लम यही होता है, इंक्लिनेशन नहीं समझ में आता, बहुत बार ऐसा हुआ है। 99% लोगों को इंक्लिनेशन शुरू में नहीं समझ में आता। क्योंकि बिकॉज देर आर 4 एंगल्स, सो विच एंगल शुड बी कंसिडर एज इंक्लिनेशन? यस, कंप्लीट कंफ्यूजन है यार, बुक में कुछ कम वर्ड्स में दिया है, किसी भी बुक में नहीं है ये 3 पॉइंट्स। वो अलग अलग वर्ड में देते हैं, अलग शब्दों में देते हैं। बुक्स में इंफॉर्मेशन रहती है बट हम पढ़ते नहीं। नेक्स्ट, पहले क्या करना है आपको, इंटरसेक्ट कहाँ करती है? चलो, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन, ये देखो। मैं अभी 1 2 3 4 एंगल लिख रहा हूँ, 1 2 3 4। अब बोलिए थीटा कौन सा एंगल है? थीटा कौन सा एंगल होगा? थीटा कौन सा एंगल को आप कहेंगे? हाँ, लाइन इधर इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो थीटा कौन सा एंगल को कहेंगे आप? विच एंगल विल बी थीटा? यस, अब इंटरसेक्टिंग में जाइए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग, पहले आपको एक्स के साथ इंटरसेक्शन है, एक्स के साथ इंटरसेक्शन, एक्स के साथ इंटरसेक्शन है ना, तो एक्स के साथ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है। दिस इज योर पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अब आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, पहले इंटरसेक्शन एक्स के साथ, फिर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ होगी? अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के बाद आप लाइन की ओर जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा रहेगा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आप लाइन की ओर जाओगे पॉजिटिव, तो कौन सा एंगल हुआ फिर? विच इज द एंगल दैट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन? 1 2 3 4 में कौन सा एंगल है? विच इज द एंगल? Three. Three is the angle. Theta is this three angle. 1 2 3 4. Three angle is theta. Okay. Next. Angle 3 is
इंक्लिनेशन, एंगल 3 विल बी इंक्लिनेशन। बहुत ही सिंपल है, एंगल 3 विल बी इंक्लिनेशन। नेक्स्ट, अब हम और एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आपको तुरंत बताना है अभी। इस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया। अब मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4। आपको इंटरसेक्शन भी दिखा है मैंने, आपको नंबर बताना है कौन सा एंगल थीटा है। बोलिए थीटा कौन सा है, विच प्लेस ऑफ एंगल इज थीटा। हाँ यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड गुड, सब लोगों ने आंसर दिया, थीटा वन प्लेस का एंगल थीटा है। यस, गुड गुड गुड। सब लोग समझे फिर एंगल। ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम को ड्रॉ करो। थीटा विल बी with the positive direction of x-axis. ओके, तो समझे आप लोगों को। अब चलो हम आगे ड्रॉ करते हैं। इंक्लिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, 2 लेक्चर गए इंक्लिनेशन के लिए। अब हम फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आपको एंगल बताना है। समझो हमने ये लाइन ड्रॉ किया, ओके, तो मैंने ये एंगल लिखा है 30 डिग्री। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ का एंगल 60 डिग्री, बिल्कुल सही। अब ये 60 डिग्री होगा, तो हमारा इंक्लिनेशन इधर है, तो इंक्लिनेशन क्या होगा फिर, इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट। हाँ, तो ड्रॉ करो डायग्राम। हो गया, अभी सभी इंक्लिनेशन हो गए, सब इंक्लिनेशन हो गए। आप किसी भी जगह इंक्लिनेशन निकाल सकते हो, किसी भी जगह। अब हम जाएंगे स्लोप, और स्लोप से इंक्लिनेशन उल्टा, स्लोप से इंक्लिनेशन। चलो और एक लिखते हैं। अगर हमारे पास है स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एम।
tan थीटा, ये फॉर्मूला है स्लोप का। पहला प्रॉब्लम, थीटा 45 है तो m की वैल्यू बताइए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? थीटा अगर 45 है तो स्लोप इज tan थीटा, tan 45 का वैल्यू, वैल्यू ऑफ tan 45, यस tan 45 का वैल्यू 1 है, सो ये 1 आएगा। तो आपको सभी टेंजेंट बता देते हैं पहले, tan 45 का वैल्यू 1, सभी टेंजेंट बता देंगे, इसलिए एंगल एंड स्ट्रेट लाइन, यस 1, ओके। Write down simultaneously and consider what are the angles for which you can find the tangent value. So आपने लिखा है, अभी देखिए आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसमें ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये साइड √2 होती है, जब ये एंगल 45 होता है, तो यू कैन राइट एनी रेशो, आप कौन सा भी रेशो लिख सकते हो। दूसरा ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, यू कैन राइट एनी रेशो। आपको इधर 30 डिग्री लेना है और ये 60 डिग्री लेना है, और ये आपको 2 लेना है, 2 का हाफ 1 होता है, और ये √3 आएगा आपका। यार आपको ये ट्रायंगल लर्न करने हैं, कुछ भी करना नहीं बाद में। और tan 0 0 आता है, और tan 90 नॉट डिफाइंड है, tan 0 0 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। ओके, आप कौन सा भी टेंजेंट निकाल सकते हो, बट टेंजेंट का फॉर्मूला मालूम चाहिए। tan थीटा बहुत बेसिक बता रहे हैं हमने, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओ ये बस कुछ भी नहीं करना है आपको।